Hello students, welcome to my channel Sidhu's Classes. If you like my videos, don't forget to like, comment and share. हाँ जी स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ if 3 cot a equal to 4 check whether ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a। ओके ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 3 cot a equal to 4 3 cot a equal to 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cot a equal to 4 by 3 मतलब 3 ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ cot a equal to 3 by 4 by 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਨ cot a ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। cot ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ tan ਹੈ ਜਿਹੜਾ cot ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ cot 4/3 ਹੈ ਤਾਂ tan ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3/4 ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ cos ਤੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ठीक है अपने को दिता हुआ cot a मतलब cot a मतलब थीटा अपन को दिता हुआ a दिता हुआ ठीक है ना थीटा लिख लो वैसे कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं लिख लो कि अपन को a दिता हुआ इट मींस कि अपने को बेस कौन है a है ठीक है ते आ की अपने को परपेंडिकुलर है ये अपने को हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है तो अपने को की cot a हुन अपने वही फार्मूला पुराना अपना केड़ा सीगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है तो cot किथे आऊगा अपने को देखो sin cos tan का उल्ट की हुंदा cot मतलब tan की है p upon b तो cot की होगा अपने को इक्वल टू की होगा b upon p तो b upon p मतलब 4/3 की आ गया अपने को b upon p upon p का मतलब की आ गया बेस कितना आ गया 4 परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 तो बेस इक्वल टू कितना आ गया 4 परपेंडिकुलर 3 आ गया। 3 अपने को कोई 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स मतलब हम इत्थे अपन कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिता हुआ इस करके अपने को की जस्ट ये यूनिट्स है। ठीक है तो आप की करांगे हुन इथों की हम देखो अपन cos ते sin दी कढने हम tan का अपन पता लग गया भी tan p upon b होता है। ठीक है ये तो अपने को पता लग जू sin cos का कढने दी वास्ते अपन की पता लगूगा sin ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये sin है p upon h ਤੇ cos ਵਾਸਤੇ ਵੀ b upon h ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ h ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ p ਸਕੁਅਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है h मतलब कौन है h हाइपोटेन्यूज है h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर कितना b कितना अपना 4 है देखो। ठीक है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है h इक्वल टू 4 × 4 16 प्लस 3 × 3 9 16 प्लस 9 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ h h ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ h ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 plus 9 25 ਤੇ ਜਿਹੜਾ h ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਸਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ h ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ h ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ अंडर रूट 25 आया सीगा रूट 25 का क्या आ गया 5 अपने को आंसर आ गया तो h कितना आ गया अपने को वैल्यू दी 5 आ गया अपने को। ठीक है अब हुन अपने को की है मतलब tan दी वैल्यू तो हैगी सीगी cos tan sin दी वैल्यू अपने को आ चुकी है। ठीक है तो हुन देखो ध्यान नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ नेक्स्ट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈल्यू ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈल्यूज ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देखो 1 माइनस ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ
1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है। tan की वैल्यू ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ tan ਦੀ ਵੈल्यू ਤਾਂ ਵੀ cot a ਹੈ, cot a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟ ਕਿੰਦਾ 3 cot tan a ਹੁੰਦਾ, tan ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 4/3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3/4, मतलब tan ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਦਾ p upon b, p ਕਿੰਨਾ 3 b कितना 4 है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू भर देंगे आप इक्वल टू 1 माइनस 3/4 कितना किया स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 3/4 दा स्क्वायर हो गया। ठीक है, उस तो बाद आप अगे थोड़ा जा खोल लेंगे, इलैबोरेट कर लेंगे इत्थे 1 तो उदा ही आ गया। ठीक है, उस तो बाद माइनस 3/4 का स्क्वायर अपने को। ठीक है, तो 3/4 का स्क्वायर किमें करांगे, 3 का स्क्वायर किया 1 माइनस 3 3 9 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9 बाय 16 4 4 16। ओके, इतना आ गया अपना इथों। ठीक है, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 16 ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਈ 1 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਵੀ 1 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 9/1 ਮਾਈਨਸ 16 1 ਤੇ 1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਸਟ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਹੈ, 1 ਨਾਲ ਤਾਂ 16 ਸਿੱਧਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਬਸ। वैसे 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 16 ਤੇ 16 ਆ ਗਿਆ, 16 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 16 आ गया, तो 16 माइनस 9 आ गया अपने को। ठीक है, अपॉन 16 ते 1 का एलसीएम फिर आ गया अपने को, देखो 16 आ गया ऊपर, फिर उधर ही 16 × 1 16 प्लस 9 क्यों आया, क्योंकि अपने को क्या 16 थले सीगा तो 16 ਨੂੰ 16 से डिवाइड करांगे, 16 1 आ जाऊगा, 1 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो 9 आ जाऊगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट 16 माइनस 9 कितने होंगे, मतलब 16 चो 9 कटे 9 ते 7 16 होंगे। ठीक है, तो 7 आ गया, 7 बटा 16 बटा 16 प्लस 9 कितना हो गया, 16 ते 9 25। ठीक है, 9 ते 6 15 ते 1 ते 1 2 16 ते 9 25 बटा 16। हम देखो ध्यान नाल तुसीं इहनूं ये 7/16 है, ये 25/16 आ गया ना ये बटा। ठीक है, ये इक्वल टू इथे रख लो। ठीक है, तो हम देखो आप जो अपनी जी थले वाली वैल्यू है ना 25/16 जो ऊपर जाऊगी वो जाके की हो जाती है अपने कोले ओदा इनवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू जिवें आप देखो 7/16 मल्टीप्लाई 7/16 गुणा करके कितना आ गया 16/25 आ गया अपने को। ठीक है, तो जो 16/25 आऊगा तो 16 नाल की 16 कटा जाऊगा, तो इक्वल टू कितना रह गया अपने को 7/25 रह गया अपने को। ठीक है, ये मतलब आप इथों मान के चलते भी अपने को लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना, ये आप सब तो पहला किया लेफ्ट हैंड साइड लेके चले सीगे। ठीक है, तो हुण अपने को देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया अपने को 7/25 आ गया। ठीक है, हुण आप की करते हैं जी राइट हैंड साइड अपनी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आप वो लेके चलते हैं, फिर आप देखते हैं कि अपना आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हुण cos स्क्वायर देखो cos कितना अपने को होंदा b upon h होंदा है ना, b upon h, b की मतलब बेस 4 h 5। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर करना देखो वैल्यूज पुट कर दे अपन cos स्क्वायर ए मतलब 4/5 दा स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू कितनी है p upon h, p कितना अपने को 3 तो h कितना 5। ठीक है, तो अपने को 3/5 माइनस 3/5 का आप कर देंगे इथे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जो 4/5 अच्छा 4/5 का स्क्वायर करो 4 × 4 16 upon 5 × 5 25 माइनस 3 × 3 9 upon 5 × 5 25। एक ही आ गया 16/25 माइनस 9/16 आ गया अपन को इसका स्क्वायर करके। हम देखो कि एलसीएम लवांगे 25 ते 25 का एलसीएम कितना आ गया अपने को
25 आ गया अपने को इसका कैल्शियम, ठीक है। तो 16 चो 9 कटे, 16 ही सीधा ही कर दो, जो नहीं करना था। जो एलसीएम 25 आ गया, पता ही अपन उपरला 16 माइनस 9 ही आऊगा, ठीक है। तो 16 माइनस 9 कितना होगा अपने को, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 चो 9 कटे 7, तो 7 बटा 25 आ गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ cos ਸਕੁਅਰ a ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਅਰ a ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7/25 ਮਤਲਬ 7/25। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ 1 ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਅਰ a upon 1 plus tan ਸਕੁਅਰ a। ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7/25 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਸਟ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब की है थले जो है स्कूल लिखना था, वैसे कोई लोड भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपन प्रूफ करता है, ठीक है। ये मतलब खब्बा पासा बराबर है सज्जा पासा, तो यही अपन ये देखो प्रूफ करना सीगा, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, if tan a equal to 1/√3 मतलब tan a 1/√3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। find the value of sin a cos c plus cos a sin c, cos c and sin minus sin a sin c। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ a ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sin a ਤੇ cos c ਦੀ ਵੈਲਿਊ, मतलब ਨਾਲ c ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ cos sin a ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। a ਵੀ मतलब ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ c ਨੂੰ ਵੀ ਥੀਟਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ b ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ a b ਐਂਡ c, ਠੀਕ ਹੈ। a b c ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ a, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ tan a ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ sin cos ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ tan a, ਪਹਿਲਾਂ tan a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/√3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, tan a equal to 1/√3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਬਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ tan ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ p/b, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ p/b। p/b ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ। ਜਦੋਂ tan a ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਹੈ a ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ a ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ tan a p ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ठीक है। ये कितना हो गया अपने को 1, ठीक है। मतलब p इक्वल टू 1 हो गया। b बेस कौन होया √3, तो बेस b इक्वल टू √3 आ गया, ठीक है। तो अपन देखो ध्यान ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ sin cos ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin ਤੇ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਟ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ h ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ p ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ p ਸਕੁਅਰ मतलब बेस ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ h ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ बेस ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ √3 है, √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, h ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਲਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। h ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 + 1 4 ਤੇ 4 ਦਾ ਅੰਡਰ रूट आ गया, इधर आया स्क्वायर से इधर आके अंडर रूट हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया अपने को h 2 आ गया, ठीक है। अंडर 4 कितना होता है 2 होता है, तो अपने को क्या आ गया h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। h इक्वल टू 2 आ गया अपने को, ओके। हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। जस्ट हुन की देखना आप देखो हुन आप वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है sin a cos c cos a sin c cos a cos c माइनस आप ਵਿੱਚ माइनस आ गया sin a sin c, ठीक है। तो आप सारे दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पहला, या तो पहला वैल्यूज लिख लो सारे दी, ठीक है। जे नहीं वैल्यूज लिखनी है जस्ट तो फिर की सीधा ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वैल्यूज पुट कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sin a ਕੱਢਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ a ਰਹੂਗਾ,
बट जो आप cos c कटांगे तो अपने को थीटा की हो जाएगा c वाला हो जाएगा। उस टाइम ते की अपने को बेस कौन फिर बदल जाऊगा, फिर अपने को बेस किहड़ा आ बन जाऊगा, परपेंडिकुलर किहड़ा बनूगा ए बनूगा। इस करके मैं एक बार इहनूं की जस्ट हटा देवांगा भी अपने को की है मतलब वैल्यूज तो आ गई ने, बट हुण अपने को की है आ बेस ते परपेंडिकुलर चेंज होंगे, हाइपोटेन्यूज कदे नहीं चेंज होगा, वो उदा का उदा ही रहूगा। ठीक है, तो आप की करांगे जस्ट मैं वैल्यू बी एंड पी हटाता क्योंकि अपन की इसे चेंज करना पऊगा। ठीक है, तो हम देखो फर्स्टली आप फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है, ये देखो ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ sin a cos c plus cos a sin c। ठीक है, हम देखो sin a ਦੀ वैल्यू sin की ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ p upon h। ठीक है, p upon h ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sin a ਮੰਨਿਆ a मतलब थीटा a हो गया तो अपने को बेस कौन हो गया, यही हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो साइन है p अपॉन h, p कौन है, p कौन है 1 है, h कौन है 2 है। ठीक है, तो आप वैल्यू पर आएंगे जस्ट हुण आप इत्थे ना वैल्यूज भर देनी है इक्वल टू साइन ए की वैल्यू की होगी p अपॉन h, p कितना 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय cos c। हुण देखो ध्यान नाल cos c की वैल्यू आ गई अपने को, cos c कढना आप cos c किवें कढांगे, थीटा कौन c, तो अपने को की आ चीज की हो जूगी परपेंडिकुलर, आ की बन जूगा बेस। समझ आई ना, जो अपने को c आप जो थीटे के अकॉर्डिंग अपना की बेस एंड परपेंडिकुलर जेड़ा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अपने को cos c हुण आप की cos c की वैल्यू कढनी है, cos c तो cos c की वैल्यू किने, cos की हुंदा b upon h, b बेस कितना 1 ए हाइपोटेन्यूज कितना 2, तो फिर अपने को कितना आ गया 1/2 प्लस हुण cos a। हुण देखो cos c की वैल्यू कढ दी सिर्फ अपन cos a की वैल्यू कढनी है, जो cos a की वैल्यू कढांगे तो थीटा कौन होगा a, तो बेस कौन बन गया √3 ते परपेंडिकुलर कौन बन गया अपने को 1। ठीक है, तो अपने को की करना है अपन देखो cos a की वैल्यू प्लस पार्ट cos a की वैल्यू कढनी है, cos की ਹੁੰਦਾ अपने को b upon h, तो b कितना √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin c की वैल्यू कढनी है। अपन देखो हुण sin c मतलब ए बन गया। ठीक है, c थीटा तो बेस कितना आ गया 1, आपने को परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो sin c की वैल्यू कितना कढांगे अपन देखो sin की ਹੁੰਦਾ p upon h, तो p कितना √3, h कितना 2। ठीक है, ये वैल्यूज पाती हैं आप सारी हुण इहनूं आपां की सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 × 1 1 2/2 2 × 2 4 प्लस √3 कितना हो जाएगा देखो √3 तुम्हें पता ही है दसिया हुआ देखो ध्यान नाल भी जो √3 ते √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर का √3 कटा जाएगा तो अपने को क्या है 3 रह जाएगा, तो प्लस 3/2 आ गया। ठीक है, जस्ट मैं आपको थोड़ा दस भी देना भी जो अपने को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करांगे तो इक्वल टू ये √3 का स्क्वायर हो गया, मतलब दो बार आ गया √3 अपने को, तो स्क्वायर का रूट कटा जाएगा तो अपने को 3 रह जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क है जस्ट। ठीक है, ओके, तो अपने को की बना देखो ओके सॉरी √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन गया, 2 × 2 4 आ गया अपने को। ठीक है, जस्ट 4 आ गया। ओके, तब एक क्या करना अपने को 1/4 प्लस 3/4 आ गया। ठीक है, तब हम अपने को देखो नीचे की है 4 × 4 ही है ना दोनों थां पे, तो अपने को एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ गया अपने को ਇਹਦਾ ਤੇ 1 ਉੱਤੇ 3 है, ये भी सिंपली सेम ही आ जाएगा कि दोनों 4 ही है, तो अपने को 1 + 3 आ गया, तो इक्वल टू क्या है 1 + 3 4/4 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ कितना आ गया अपने को 1 ही आ गया इक्वल टू 1, तो अपने को 1/1 1 ही होता। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर अपने को कितना आ गया
1 आ गया जी। हुण ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ cos a, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ cos a cos c minus sin a sin c। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ cos a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, cos c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, sin a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, sin c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ cos a cos c है ना, cos a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ √3/2, ठीक है। प्लस तो cos a है प्लस 1 प्लस तो cos a, तो अपने को √3/2 into cos c। cos c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਸੀ cos c 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1/2 ਮਾਈਨਸ sin a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਸਟ ਤੇ 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ sin c √3/2 ओके। ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਿਹਾ √3 into 1 √3 into 1 √3/2 into 2 4 minus 1 into √3 into 1 √3/2 into 2 4, ठीक है। तो √3/4 माइनस √3/4 कितना होगा कट के देखो सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, तो आ चीज सारी इधर कट्टी गई जस्ट, ठीक है ना। तो इक्वल टू कितना आ गया अपने को 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपने को इतने सम आ गया, ठीक है। ये अपना सवाल सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। बिकॉज अपन पता ही है भी 2 - 2 करांगे ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ 5 - 5 = 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ PR + QR = 25 cm and PQ = 5 cm, find sin P cos P and tan P। मतलब अपने को ट्रायंगल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ PQR ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਐਟ Q मतलब Q ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ PQ 5 cm ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ PR ਤੇ RQ ਜਾਂ QR ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ sin P cos P tan P। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PR + QR ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PR ਨੂੰ x मान लेंगे, लेट PR = x मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ लेट PR = x, ठीक है। ਤੇ P को ਆਪਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ x ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ PR x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x + QR = 25, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਧਰ QR। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੀਏ QR = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 - x मतलब x ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25 - x ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ फाइंड आउट किवें करांगे पहली वैल्यूज PR ਤੇ QR ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। PR ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਗਿਵਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ
इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यही होंगी ना। तो हाइपोटेन्यूज किहड़ा अपने कोल पी आ रही है, हम आपको पता है राइट एंगल इत्थे है ना, तो यह कितना एक्स आपा करिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना अपना पी क्यू मान लो। चलो आप अपने को एंगल नहीं दिता कोई गल नहीं, आप बेस मान लेंगे भी अपने को पी क्यू आ, क्योंकि अपने को साइन पी कॉस पी टैन पी कटना, तो थीटा अपने को आप ऐसे मन के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे अपने को पी दी है थीटा है ना। तो अपने को कितना आ गया, देखो बेस कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर की वैल्यू आप लिखी बैठे हैं क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है जी। तो उस तो बाद देखो एक्स स्क्वायर ओके इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस हुण आगे देखो ये की बन रहा अपने को 25 माइनस एक्स की बन रहा अपने को ए माइनस बी दा होल स्क्वायर, मतलब 25 ए बन गई एक्स की बन गया बी बन गया तो ए माइनस बी दा होल स्क्वायर बन गया अपने को। तो अपने पता है भी ए माइनस बी दा होल स्क्वायर अपने को की होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये अपने को फार्मूला होता है, तो आप इतने की जस्ट फार्मूला पुट कर देंगे। देखो 25 का स्क्वायर 25 25 625 ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए बी ए कौन है 25, तो 25 गुणा 50 हो गया अपने को 50 इंटू बी एक्स 50x हो गया अपने को, ठीक है ना। जस्ट आप सिंपली मैं इसे जस्ट फार्मूला पुट करता ओके। तो हम देखो तो ना इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, जो अपने को प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम वैल्यूज है ना प्लस प्लस दियां, तो ये नाल की है कटिया गया, ठीक है। इत्थे की रह गया 0 रह गया अपने को, हुन इत्थे 0 इक्वल टू की रह गया 25 प्लस 625 25 प्लस 625 कितना आ गया 650 आ गया 650 आ गया, ठीक है ना 650 माइनस 50x ओके। तो माइनस 50x आ गया। और देखो माइनस 50x आ जो इधर जाऊंगा तो अपने को की बन गया प्लस 50x बन गया इक्वल टू 650 आ गया, मतलब 650 50x बराबर है 650 आ गया अपने को। तो अपने को x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 650, इधर आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा है 50, ठीक है। तो अपने को 0 ना 0 कैंसिल 5 तो 5 13 5 65 होंगे हैं, ठीक है। तो 13 से कटे गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को इथों 13 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 13 आ गई। तो हम जो अपने को x 13 सेंटीमीटर आ गया, तो अपने को क्यू आर कितना सीगा 25 माइनस एक्स है ना। तो आप की करांगे इत्थे देखो ये सीगा 25 माइनस एक्स, तो 25 दे विचों हुण आपां देखो 13 कटे, ठीक है ना 25 दे विचों माइनस 13 कीते तो कितना आ गया 12 आ गया अपने कोले। तो इहदी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। हुण अपने को देखो ध्यान तिन्ने वैल्यूज अपने कोले आ चुकी हैं, ठीक है। हुण आपां की करना फाइंड आउट sin p cos p एंड tan p, ठीक है। sin p हुण अपने को देखो sin p हुण वही फार्मूला अपना किहड़ा सीगा देखो ध्यान नाल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब एस मतलब साइन पी इक्वल टू साइन पी कितना पी पाउंड एच पी कितना परपेंडिकुलर अपने को परपेंडिकुलर आ गया पी परपेंडिकुलर आ गया 12 बटा एच एच कितना हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है 12 बटा 13 आ गया cos p इक्वल टू क्या cos p b पाउंड एच b कितना बेस कितना 5 है, ठीक है। h कितना का 13 का, ठीक है जी ओके। तो उस तो बाद क्या गया अपना tan p, तो tan p की वैल्यू कटांगे ਆਪਾਂ tan p इक्वल टू कितना आ गया अपने कोले p on b मतलब परपेंडिकुलर
अपॉन बेस तो कितना आ गया 12/5 12/5 तो अपने को एक ये वैल्यू आ गई एक ये वैल्यू आ गई एक ये वैल्यू आ गई दीज आर आवर आंसर्स ठीक है ये सारे आंसर ने ठीक है तो इधर भी है इतने तक मतलब sin p 12/13 आ गया cos p 5/13 आ गया tan p 12/5 आ गया ठीक है जस्ट आही फार्मूला आप बार-बार यूज कर रहे हैं ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 8.1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11th ਸਮ ਉਹ ਜਸਟ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਸਟ ਈਜ਼ੀ ਆਉਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.2 ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ